अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो है हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हैज आसिफ नॉट कॉल्ड यू? तो इसका आंसर हो जाएगा हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय आसिफ, ऑप्शन में। नेक्स्ट, आई शैल नॉट फेस दिस डिफिकल्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस डिफिकल्टी विल नॉट बी फेस बाय मी, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन। इसका आंसर हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। The exhibition has been inaugurated by the chief minister. जैसे they had not misguided by anyone. तो इसका आंसर हो जाएगा anyone had not been misguided by them, option H. Next they should avoid an error. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Any error should be avoided by them, option H. Next he is not asking questions. तो इसका आंसर हो जाएगा questions are not being asked by him, option G. Next did the criminal confess their crimes? तो इसका आंसर हो जाएगा were the crimes confessed by the criminals, option B. Next is she was motivating her friends. इसका आंसर हो जाएगा her friends were being motivated by her, option G. Next है do not beat this boy. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Let this boy not be beaten, option E. हमने सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करना है सबको। Shall we have occupied this room? तो इसका आंसर हो जाएगा will this room have been occupied by, option है। नेक्स्ट है the police caught the thief। तो इसका आंसर हो जाएगा the thief was caught by the police, option E. नेक्स्ट है did Mr. Akbar gave a gift to his mother? जिसका आंसर हो जाएगा was a gift given to his mother by Mr. Akbar, ऑप्शन जी। We will have finished the task by next week. तो इसका आंसर हो जाएगा the task will have been finished by us by next week, ऑप्शन है। नेक्स्ट है does he invite all his friends? इसका आंसर हो जाएगा are all his friends invited by him, ऑप्शन है। नेक्स्ट है I make cakes every week। तो इसका आंसर हो जाएगा cakes are made by me every week, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है she found her watch। इसका आंसर हो जाएगा her watch was found by her, ऑप्शन है। नेक्स्ट है will a tree have been planted by you? तो इसका आंसर हो जाएगा will a tree have been planted by you, ऑप्शन जी। नेक्स्ट है they haven't stamped that letter। तो इसका आंसर हो जाएगा the letter hasn't been stamped by them, ऑप्शन है। नेक्स्ट है the government has called क्या the government has called out troops? तो इसका आंसर हो जाएगा troops have been called out by the government, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है he met me yesterday। तो इसका आंसर हो जाएगा I was met by him yesterday, ऑप्शन ई। ऐसे में कर रहे हैं ना इसे। Some boys were helping the wounded man। तो इसका आंसर है the wounded man was being held by some boys, ऑप्शन है। नेक्स्ट he will finish the work in a fortnight। तो इसका आंसर हो जाएगा the work will be finished by him in a fortnight, ऑप्शन ई। नेक्स्ट why did your brother write such a letter? तो इसका आंसर हो जाएगा why was such a letter written by your brother, ऑप्शन जी। नेक्स्ट I have invited someone to the party। इसका आंसर हो जाएगा someone has been invited by me to the party, ऑप्शन ई। नेक्स्ट the Romans expected to conquer Egypt। इसका आंसर हो जाएगा I was expected by the Romans that they will conquer Egypt, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है a ball is projected with velocity 10 meter per second at angle of 30 degree with the horizontal surface. The time taken by ball to reach the ground is। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है the heavy truck has more momentum than a passenger car moving at the same speed because the truck। तो इसका हो जाएगा उसका ग्रेटर मास होता है, इसकी ऑप्शन डी। Next, a rifle of mass m is initially at rest but free to recoil. It fires a bullet of mass m and velocity v. After firing, the velocity of rifle is। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस एम बी अपॉन एम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट द बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। उसके पास क्या कांस्टेंट होनी चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट एन एयरप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद 50 मीटर पर सेकेंड ड्रॉप अ पैकेट एट 490 मीटर हाइट इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम t इज इक्वल टू 2h/√2h/g लगाएंगे। ओवरऑल आंसर हमारे पास 10 सेकेंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। Next, a truck weighing 500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 100 kg. The truck and the car move together after the impact. Calculate the common velocity. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। आंसर 15 हो जाएगा, और 15 के करीब 10 है, तो ये आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। Next, a man is a car is moving with velocity of 36 kilometer per hour. His speed with respect to the car is। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड रिलेटिव होगी कार के, यानी कि 0 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन बॉडी। कब इक्वल होता है, जब बॉडी की एक्सीलरेशन 0 हो जाए, ऑप्शन वन। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड करती है, वो टाइम पे डिपेंड करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ वेट है, ऐसा यूनिट वेट ऐसा यूनिट ऑफ वेट का क्या हो जाएगा, न्यूटन, ऑप्शन डी। Next है when a ball is thrown straight up with no air resistance, the acceleration at its height a point। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड मूव करेगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है the speed of a car being 1500 increases from 36 kilometer hour to 72 kilometer per hour uniformly। What will be the change in momentum होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा पी इजिकल टू मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इजिकल टू एम, फिर ब्रैकेट में वी माइनस यू। ओवरऑल आंसर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 15,000 kg, ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी मास ऑफ 0.1 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी कि 0.5 को डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। Next है which ball will hit the ground first, it is dropped at the same time and at the same height in perfect walking। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो हिट करेगी सेम टाइम पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास when you walk across the ground and push on it with your feet। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ग्राउंड होगा वो पुश बैक करेगा आपके फीट को इक्वल फोर्स के साथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास if two masses collide in one dimension where m2 is at rest and m1 moving with velocity u2, the final velocity of the two masses are। तो इसका आंसर हो जाएगा v1 0 के बराबर हो जाएगा, v2 u1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if a car and truck move with same velocity and we applied same force on both, which body comes rest first। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कार वो पहले रेस्ट पर आएगी, क्योंकि इसका मास कम है। नेक्स्ट है what is the velocity of an object when it reaches from point P to point Q in 2 seconds along a semicircular radius 2 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी डायमीटर के अ, जो कि है 4 मीटर के बराबर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/2 का, आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद स्टार्स रेस्ट टू रीच 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन सी, डी हो जाएगा, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट, अ बॉल इज इन फ्री फॉल इज एक्सेलरेशन इज। इसका आंसर हो जाएगा कि वो डाउनवर्ड मूव करेगा अपने एसेट और डिसेंट से, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सपेंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि एग्जिस्टेंस जो होती है पेयर ऑफ फोर्सेस की, वो नेचर में क्या होती है, तो वो थर्ड लॉ बताता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बराबर होगा 1 के, ऑप्शन ए। Next है a runner runs 100 meter in 10 seconds, then turns around and jogs 50 meter back towards the start in 30 seconds। What is his average speed and average velocity in meter per second। तो टोटल डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, हम जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे जिसके अंदर 50 को डिवाइड करेंगे 40 से 1.25 आंसर आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी हमने 150 को डिवाइड किया था 40 से, तब आया था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। A car of mass 1000 kg moving with 25 meter per second collides straight with a stationary truck of mass 1500 kg and start moving together. Find a common velocity. तो इसका आंसर हो जाएगा v इक्वल टू हम थाउजेंड को डिवाइड करेंगे 25,000। ओवरऑल आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर 8 9 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। अब जब हम केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर जो है हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हैज आसिफ नॉट कॉल्ड यू। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव यू नॉट बीन कॉल्ड बाय आसिफ, ऑप्शन में। नेक्स्ट, आई शैल नॉट फेस दिस डिफिकल्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस डिफिकल्टी विल नॉट बी फेस बाय मी, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन। इसका आंसर हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। द एग्जीबिशन हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जैसे दे हैड नॉट मिसगाइडेड बाय एनी पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीवन हैड नॉट बीन मिसगाइडेड बाय देम, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है दे शुड अवॉइड एन एरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी एरर शुड बी अवॉइडेड बाय देम, ऑप्शन एच। नेक्स्ट ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय हिम, ऑप्शन जी। नेक्स्ट डिड द क्रिमिनल कन्फेस देयर क्राइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वर द क्राइम्स कन्फेस बाय द क्रिमिनल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज शी वाज मोटिवेटिंग हर फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा हर फ्रेंड्स वर बीइंग मोटिवेटेड बाय हर, ऑप्शन जी। नेक्स्ट है डू नॉट बीट दिस बॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट दिस बॉय नॉट बी बीटन, ऑप्शन ई। हमने सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करना है सबको। शैल वी हैव ऑक्यूपाइड दिस रूम। तो इसका आंसर हो जाएगा विल दिस रूम हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय, ऑप्शन है। नेक्स्ट है द पुलिस कॉट द थीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है डिड मिस्टर अकबर गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर। इसका आंसर हो जाएगा वाज अ गिफ्ट गिवन टू हिज मदर बाय मिस्टर अकबर, ऑप्शन ऑप्शन जी। वी विल हैव फिनिश द टास्क बाय नेक्स्ट वीक। तो इसका आंसर हो जाएगा द टास्क विल हैव बीन फिनिश बाय अस बाय नेक्स्ट वीक, ऑप्शन है। नेक्स्ट है डज ही इनवाइट ऑल हिज फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आर ऑल हिज फ्रेंड्स इनवाइटेड बाय हिम, ऑप्शन है। नेक्स्ट है आई मेक केक्स एवरी वीक। तो इसका आंसर हो जाएगा केक्स आर मेड बाय मी एवरी वीक, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है शी फाउंड हर वॉच। इसका आंसर हो जाएगा हर वॉच वॉज फाउंड बाय हर, ऑप्शन है। नेक्स्ट है विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू। तो इसका आंसर हो जाएगा विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू, ऑप्शन जी। नेक्स्ट है दे हैवंट स्टैम्प्ड दैट लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा द लेटर हैजंट बीन स्टैम्प्ड बाय देम, ऑप्शन है। नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड क्या द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रूप्स। इसका आंसर हो जाएगा ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन एच। नेक्स्ट है ही मेट मी यस्टरडे। तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज मेट बाय हिम यस्टरडे, ऑप्शन ई। ऐसे में कर रहे हैं ना इसे। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वांटेड मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा द वांटेड मैन वाज बीइंग हेल्ड बाय सम बॉयज, ऑप्शन है। नेक्स्ट ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्क विल बी फिनिश बाय हिम इन अ फोर्टनाइट, ऑप्शन ई।
नेक्स्ट, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, ऑप्शन जी। नेक्स्ट, आई हैव इनवाइटेड समवन टू द पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा समवन हैज बीन इनवाइटेड बाय मी टू द पार्टी, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर इजिप्ट। इसका आंसर हो जाएगा आई वाज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन दैट दे विल कॉन्कर इजिप्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, a ball is projected with velocity 10 meter per second at angle of 30 degree with the horizontal surface. The time taken by ball to reach the ground is। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the heavy truck has more momentum than a passenger car moving at the same speed because the truck। तो इसका हो जाएगा उसका ग्रेटर मास होता है, इसकी ऑप्शन डी। Next, a rifle of mass m is initially at rest but free to recoil. It fires a bullet of mass m and velocity v. After firing, the velocity of rifle is। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस एम बी अपॉन एम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। उसके पास क्या कांस्टेंट होनी चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। Next, an airplane moving horizontally with 50 meter per second drop a packet at 490 meter height. Its time of flight is। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम t इज इक्वल टू 2h/√2h/g लगाएंगे। ओवरऑल आंसर हमारे पास 10 सेकेंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, a truck weighing 2500 kg and moving with a velocity of 21 meter per second collides with a stationary car weighing 100 kg. The truck and the car move together after the impact. Calculate the common velocity। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। आंसर 15 हो जाएगा, और 15 के करीब 10 है, तो ये आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। Next, a man is a car is moving with velocity of 36 kilometer per hour. His speed with respect to the car is। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड रिलेटिव होगी कार के, यानी कि जीरो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन बॉडी। तब इक्वल होता है जब बॉडी की एक्सीलरेशन जीरो हो जाए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिपेंड अपॉन। किस पे डिपेंड करती है? वो टाइम पे डिपेंड करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। एसआई यूनिट वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट का क्या हो जाएगा? न्यूटन, ऑप्शन डी। Next है, when a ball is thrown straight up with no air resistance, the acceleration at its height a point। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड मूव करेगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ अ कार being 1500 increases from 36 kilometer hour to 72 kilometer per hour uniformly। What will be the change in momentum होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा पी इजिकल टू मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इजिकल टू एम, फिर ब्रैकेट में वी माइनस यू। ओवरऑल आंसर हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 15,000 kg, ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी मास ऑफ 0.1 kg? तो इसका आंसर हो जाएगा ई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यानी कि 0.5 को डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, which ball will hit the ground first? It is dropped at the same time and at the same height in perfect walking। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो हिट करेगी सेम टाइम पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, when you walk across the ground and push on it with your feet। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ग्राउंड होगा वो पुश बैक करेगा आपके फीट को इक्वल फोर्स के साथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, if two masses collide in one dimension where m2 is at rest and m1 moving with velocity u2, the final velocity of the two masses are। तो इसका आंसर हो जाएगा v1 0 के बराबर हो जाएगा, v2 u1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, if a car and truck move with same velocity and we applied same force on both, which body comes rest first? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कार वो पहले रेस्ट पर आएगी, क्योंकि इसका मास कम है। नेक्स्ट है, what is the velocity of an object when it reaches from point P to point Q in 2 seconds along a semicircular radius 2 meter? तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी डायमीटर के
जो कि है 4 मीटर के बराबर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/2 का, आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद स्टार्स रेस्ट टू रीच 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन सी, डी हो जाएगा। आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट, अ बॉल इज इन फ्री फॉल इज एक्सेलरेशन इज। इसका आंसर हो जाएगा कि वो डाउनवर्ड मूव करेगा अपने एसेट और डिसेंट से, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सपेंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि एग्जिस्टेंस जो होती है पेयर ऑफ फोर्सेस की, वो नेचर में क्या होती है, तो वो थर्ड लॉ बताता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बराबर होगा 1 के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है a runner runs up 100 meter in 10 seconds, then turns around and jogs 50 meter back towards the start in 30 seconds. What is his average speed and average velocity in meter per second? तो टोटल डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे? हम जो एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी निकालेंगे, जिसके अंदर 50 को डिवाइड करेंगे 40 से, 1.25 आंसर आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी हमने 150 को डिवाइड किया था 40 से, तब आएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। A car of mass 1000 kg moving with 25 meter per second collides straight with a stationary truck of mass 1500 kg and start moving together. Find a common velocity. तो इसका आंसर हो जाएगा v इक्वल टू, हम 1000 को डिवाइड करेंगे 25,000, ओवरऑल आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर 8 मीटर 9 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। अब जब हम केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,